आप लोगों को सबसे पहले अपने फर्स्ट स्पीकर मैम परवीन मल्होत्रा का इंट्रोडक्शन देता हूं। आप देखो। She is a top-notch India counselor and a columnist who have featured into 1,000+ TV shows across channels. She has anchored a career cafe, a popular live career show on Lok Sabha TV every week. More than 2,000 episodes have been aired till date. She had been conducted various workshops into universities, colleges, schools, and industries in India and abroad. Hello. She has authored 50+ books and a career report and a very renowned Times of India columnist. मैडम से आप लोग अगर आज के क्वेश्चन के बाद दोबारा से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैडम का ईमेल भी है caring@careerguidanceindia.com। मैम, आई वेलकम यू ऑन माय पर्सनल बिहाफ और विद्या की तरफ से मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। थैंक अब यू मैं सो अपने नेक्स्ट मच। स्पीकर मैडम देवदत्त, पूनम देवदत्त, इनको आप लोगों से इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैडम देवदत्त इज अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट and an organizational trainer. He is expert consultant on stress management and HR development to the Punjab Police Academy. Madam had worked extensively with 9 divisions and 22 divisions of Indian Army at Meerut. She had conducted over more than 200 workshops in different organizations, schools, institutes, universities, departments. She is having more than 30 years of teaching experience psychology, and she usually writes a column for Amar Ujala and Times of India. Next in our panel, I would like to introduce Ma'am Ritu Kaushik to you, who is a psychologist and a career expert. She is a registered panel counselor at National Career Services. She is a regular column writer for the daily newspaper Dainik Jagran. She had authored various books on career options, which the students can select after class 12. At present, she is working as a head of the department psychology and counseling cell at Diwan Public School. She had been chaired various positions across India, and she had given a training to Delhi Police Commonwealth Games on stress management, anger management, and effective communication. Next in a series, we have Major Nupur Gupta, who is a veteran army officer and having a 24 years of experience in teaching and training. Madam has worked as a leadership consultant with CATC Academy Pune. For 13 years, she is in a field of teaching and mentoring the MBA students, BBA students, and BTech students across India. She has conducted various counseling sessions for faculties, parents, and the students pan-India. Madam has presented more than 21 research papers in national and international conferences. We go to Ma'am Devdutt. मैम, मैम आपसे जो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं that that CBSE, CBSE, ICSE, ICSE, state boards are inclined towards online education. But there is still a huge percentage of the students who are not well versed with digital medium. How is it going to impact the tech of the students? Yes. Can you get my voice now? Yes, ma'am. Okay. So as I was saying, the problem that you have mentioned is a very real problem. बहुत सारे स्कूल्स जहाँ पर की टेक्नोलॉजी बच्चे भी savvy है और स्कूल्स के पास भी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने तो अपना ऑनलाइन मोड पर डिलीवरी सिस्टम ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया है. But it is right to say that in our country there is such great diversity. We have the richest of the rich and the poorest of the poor. तो जो disadvantaged sections हैं या जो रूरल एरियाज में हैं या जहाँ पर की इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं हैं, they do not have laptops, they do not have mobile phones, so for them to access anything online is almost impossible. तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है और इसको मास्टर करने के लिए जहाँ तक संभव हो हमें ब्लेंडेड मॉडल ऑफ एजुकेशन फॉलो करना पड़ेगा. हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, तो इस टेम्पररी सिचुएशन में वी हैव टू मीट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो उसी के तहत बहुत से स्कूलों ने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू किया है, लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता और इसीलिए सीबीएसई, आईसीएसई जितने भी बोर्ड्स हैं, दे आर ऑल नॉट गिविंग एनी फाइनल वर्डिक्ट. अभी हमारे लिए वेट एंड वॉच करने का भी टाइम है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मई जून में छुट्टी हो जाती है स्कूल की,
तो अभी तो वैसे भी वी कैन से दैट इट इज हॉलीडे टाइम। अब जब जुलाई में क्या सिचुएशन बनेगी इस पर निर्भर करेगा कि आगे का प्लान क्या होगा। जैसे सीबीएसई ने अपना बहुत से मेजर्स ऐसे लिए हैं विच आर स्टूडेंट फ्रेंडली। उन्होंने 1 to 15 जुलाई की नई डेट शीट जारी कर दी है कि जो एग्जाम्स रह गए थे उनको आगे किया जाए। लेकिन इसमें भी उन्होंने और भी बहुत सारे चीजें ऐसी की हैं जो कि बच्चों के लिए सूट करेंगी। जैसे कि सीबीएसई का ये भी डिसीजन है कि फ्रॉम क्लास 1 to 8 एंड दिस डिसीजन हैज बीन टेकन इन कंसल्टेशन विद द एनसीईआरटी that from class 1 to 8 students will be promoted without exam also। फिर उनका डिसीजन है कि क्लास 9 और 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उससे पहले ही बहुत सारे स्कूल्स के तो फाइनल एग्जाम्स हो गए थे, बट देयर वर मेनी स्कूल्स जहाँ पर कि फाइनल एग्जाम नहीं हो पाए थे। जहाँ नहीं हो पाए थे उसके लिए सीबीएसई का सर्कुलर था 1 अप्रैल में उन्होंने ये सर्कुलर निकाला कि जहां फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए हैं उन बच्चों को अब जो मार्क्स दिए जाएंगे, एग्जाम दोबारा नहीं होगा बट दे विल बी गिवन मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस टेस्ट, प्रीवियस जो हाफ ईयरली हुए होंगे, यूनिट टेस्ट हुए होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, इन सब की बेसिस पर उनका असेसमेंट करके उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। उनमें ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई बच्चा इस तरीके से भी पास नहीं हो पाता so during the lockdown period he may be given some interventions for help for upgrading him and then later some exam may be conducted either online or offline। और जहां तक कि क्लास 10th and 12th बोर्ड्स का सवाल है, इसमें सीबीएसई ने ये डिसाइड किया कि जो एग्जाम बच गए हैं वो अब जैसे उन्होंने डेट शीट डिक्लेयर कर दिया है कि इट विल बी हेल्ड इन जुलाई। और ये जो एग्जाम होगा ये केवल मेन सब्जेक्ट्स में होगा, कुछ जो पेरिफेरल सब्जेक्ट्स हैं उसको उन्होंने इससे निकाल दिया है और ये अनाउंस किया कि इसका कैसे असेसमेंट होगा वो बाद में वो डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट बच गए, मेन सब्जेक्ट से मतलब है वो सब्जेक्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी होते हैं या जिनको जो जरूरी है आगे के एडमिशन के लिए, तो दो सब्जेक्ट्स विल बी टेकन केयर ऑफ। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस सपोर्ट। और फिर लौटकर मैं आपके पास आऊंगा। अब हम बढ़ते हैं मैडम कौशिक के पास, ऋतु कौशिक मैम के पास, जो कि अभी बच्चे 10th का एग्जाम देकर जो बच्चे इस वक्त 11th में आए हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा अपने आप में कंफ्यूज हैं कि हमें 11th के अंदर कौन सी स्ट्रीम्स लेनी चाहिए, वेदर आई शुड गो फॉर ह्यूमैनिटीज, साइंस और विच कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट और अ कॉमर्स। So this is the main sense of a counseling which the students are needing. तो मैडम ऋतु कौशिक, आप इस वाले जॉनर में एक्सपर्ट हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप बच्चों को लाइटन करो, जो बच्चे इस वक्त 11th में अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो क्या सोचकर किस कॉम्बिनेशन को लें। ओवर टू यू मैम। हेलो एवरीवन। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से बच्चों को क्लास 11th के लिए अपने सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम्स को चूज करना चाहिए। बीइंग इन द स्कूल सेटअप सिंस लॉन्ग, पिछले कई सालों से बच्चों के साथ काम करते हुए, जनरली व्हाट आई सी इज कि जब बच्चे 11th में एडमिशन के लिए आते हैं तो ज्यादातर बच्चों के ऊपर एक इस तरीके का प्रेशर होता है या इस तरीके का दबाव होता है कि वो या तो अपने फ्रेंड्स के साथ उस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं जहां पे फ्रेंड जा रही है या जा रहा है, या फिर कुछ पेरेंट्स के जो गाइडलाइंस है कि भाई ये प्रोफेशन में जाना है इसलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव है या सोशल सेटअप में कोई इस तरीके का रोल मॉडल है जिसने उस पर्टिकुलर कोर्स को किया हुआ था। सो पेरेंट्स वांट या चाइल्ड वांट कि उसको भी उसी दिशा में जाना चाहिए। सो मेरा ऐसा मानना है, या इतने सालों से जो बच्चों के साथ एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि जब क्लास 10th से 11th में ट्रांजिशन का फेज आता है उस समय बहुत जरूरी है कि बहुत शांत दिमाग से बैठ के बच्चे अपने पेरेंट्स की मदद लें, टीचर्स की मदद लें और थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ये जानने की कोशिश करें कि पढ़ाई के अलावा ऐसे और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको वो फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वो सारी चीजें जिसको करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ता, रादर दे एंजॉय डूइंग दोज थिंग्स, और थोड़ा सा उन चीजों के ऊपर फोकस करें, ये देखने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स यस, आपका 9-10 तक का जो रिजल्ट्स हैं या एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैं
वो मैटर करती है, बट दैट शुड नॉट बी द सोल डिसाइडर, दैट शुड नॉट बी द सोल डिसीजन मेकर कि भाई मेरा मैथ बहुत अच्छा था इसलिए मुझे 11th PCM लेना चाहिए, या मेरा साइंस बहुत अच्छा था मुझे इसलिए मेडिसिन में जाना चाहिए, या क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मन है कि मैं कॉमर्स में जाऊं, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सो आई शुड गो इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। सो ये वाला प्रेशर हटा के ये जानना बहुत जरूरी है दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द सिचुएशंस, या वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे काम करने में खुशी देती हैं, वो कौन से मेरे स्ट्रेंथ एरियाज हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिसमें कि मैं अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग महसूस करता हूं या करती हूं। एंड इन चीजों के लिए हम टीचर्स की मदद ले सकते हैं, हम पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। तो अपने आप को जानना, अपने एप्टीट्यूड को जानना, अपने लाइक्स डिसलाइक्स को जानना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मेरा गोल होना चाहिए दैट मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में मेरा उसका गोल क्या है, ये पता होना चाहिए। पढ़ने के बाद मैं आगे कौन कौन से प्रोफेशंस में जा सकता हूँ, क्या वो प्रोफेशंस मेरे लिए एक लाइफस्टाइल बनने के लिए आई एम रेडी विद, बिकॉज हम जो भी सब्जेक्ट्स चुनते हैं वो हमें यू टर्न करने की जनरली बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते कि हमने 11th 12th में पढ़ा और फिर ठीक नहीं लगा तो मैंने कॉमर्स छोड़ दिया और मुझे लगा कि मुझे साइंस में जाना चाहिए था, बट आई वाज नॉट अ साइंस स्टूडेंट इन क्लास 11th एंड 12th, देन आई एम बेसिकली रिग्रेटिंग कि भाई मैंने साइंस क्यों नहीं पढ़ा। सो ये एक बहुत साइंटिफिक और बहुत सेंसिटिव प्रोसीजर है जिसको कि बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है कि यस मेरे ये एप्टीट्यूड्स हैं, मेरे ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्प पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। एक्स्ट्रा हेल्प इन द सेंस दैट आई नीड नॉट टू गो कि अगर मुझे कोचिंग नहीं मिली तो मैं मैथ अपने आप से नहीं कर पाऊंगा, या मुझे साइंस में ट्यूशन नहीं मिला तो शायद साइंस में मेरे मार्क्स खराब हो जाएंगे। सो ऐसे वाले सब्जेक्ट्स जिसमें मुझे लगता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है उन सब्जेक्ट्स को मैनेज करने की, ठीक है एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिलता है तो आई एम एबल टू गो थ्रू विद दैट। सो ये बहुत जरूरी है ये जानना, और उसके साथ साथ मेरा गोल क्या है, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं, और उससे आगे जाके मुझे कौन कौन से ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इफ अ चाइल्ड फील्स दैट मुझे पीसीबी करना है और मुझे मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, बट ठीक है उसको मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है बहुत फैंसी लगता हो कि भाई एक वाइट कोट मिलेगा और पेशेंट्स को देखभाल करने का मौका मिलेगा, लॉन्ग रन में एक अच्छा मनी मेकिंग प्रोफेशन भी है, बट उसको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं इस प्रोफेशन में गया या गई तो मेरा अपना एक पर्सनल लाइफ का जोन जो है वो शायद थोड़ा खत्म हो जाएगा, बिकॉज मेरा ज्यादातर टाइम पेशेंट्स के लिए होगा। सो मेरे पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पर्सनल कंसर्न्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेंगे इन कंपैरिजन टू व्हाट माय पेशेंट्स आर डिमांडिंग फॉर। सो ये चीजें जानना, फॉर एग्जांपल लाइक आई एम अ स्टूडेंट, या मैं एक ऐसे वाला बच्चा हूं जो बहुत ज्यादा आउटडोर लोकेशंस में रह के काम नहीं कर सकता, एंड मैंने पीसीएम लेके सिविल इंजीनियरिंग में ट्राई करने की सोची। सो आई एम अ स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा धूप में जाएगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी या मुझे नौजिया होने लगेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा अपना टेम्परामेंट क्या है, क्या मैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए जिसके लिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना है उस सब्जेक्ट को पढ़ के मैं उस प्रोफेशन में जाऊंगा तो क्या मैं थ्रू आउट माई लाइफ मैं उस प्रोफेशन में अपने आप को मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो ये देखना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज एप्टीट्यूड पता होना चाहिए जिसके लिए मैं किसी साइकोलॉजिस्ट का या करियर एक्सपर्ट्स की भी मदद ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। मेरे लाइक्स डिसलाइक्स मुझे पता होने चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे मेरा अपना पर्सनालिटी टेम्परामेंट कैसा है, मेरा फिजियोलॉजिकल टेम्परामेंट कैसा है, मैं कितना स्ट्रेन आउटडोर लोकेशंस का ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, या क्या मैं बहुत सोशल टाइप व्यक्ति हूँ और मैंने ऐसे वाले प्रोफेशन को चुन लिया जिसमें मुझे ज्यादातर टाइम अपने फाइल्स पे या अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे बिताना है, मुझे लोगों से मिलने का टाइम नहीं मिलता। एंड इन सच सिचुएशंस, बिकॉज अब जो प्रोफेशंस हैं वो 9 to 5 वाले जॉब्स नहीं रहे, अब जो प्रोफेशंस हैं उसमें आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। तो जब मुझे ये मालूम है कि मुझे इतने लॉन्ग आवर्स में, लॉन्ग ड्यूरेशन में काम करना है, तो क्या वो वाला प्रोफेशन जिसके लिए मैं आज 11th में सब्जेक्ट्स चुन रहा हूं या चुन रही हूं, वो सब्जेक्ट्स मुझे उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के बाद मुझे कितना ज्यादा बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मैनेज करने का की पॉसिबिलिटी देंगे। तो अपने लाइक्स डिसलाइक्स पता हो, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को डेफिनेटली एक बार कंसिडर करना जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं इन विच आई एम गुड एट, और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि बगैर किसी ट्यूशन हेल्प के मैं मैनेज नहीं कर सकता। डोंट गो बाय व्हाट योर फ्रेंड इज गोइंग फॉर, बिकॉज आपके पास अभी हम वापस लौटेंगे। आपने जो ये 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शंस का तरीका बताया है
फोकस में। तो इससे लमसम में कुछ इस तरीके से है कि एक 11th क्लास के बच्चे का डिसीजन मेकिंग स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके खुद के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, उसके खुद के टेस्ट क्या है, डिसलाइक्स क्या है, और इसके ऊपर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अभी जितने अटेंडीज हैं मैं उनको बता दूं कि आप लोग चैट मोड में जाके अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हमारे स्पीकर से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस को इस सेशन के अंदर एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्पीकर व्हिच इज मेजर नूपुर गुप्ता, जो कि जिनसे हम लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि मैम कोविड-19 हैज मेड पेरेंट्स हेजिटेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन फार फ्रॉम अ होम फॉर फर्दर स्टडी। How is this being the mindset of a parent going to impact their children's future? असल में जो बच्चे अभी 12th के एग्जाम दिए हैं वो बच्चे अब बाहर पढ़ने जाएंगे या नहीं जाएंगे, या वो बच्चे इस तरीके का करियर सेलेक्ट करेंगे कि इफ द स्टूडेंट इज इन दिल्ली एंड उसको कोई कोर्स बेंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में करना है, तो क्या वो इतने कंफर्टेबली पेरेंट्स उसको वहां पर भेजने में रहेंगे, या घर में बहुत ज्यादा टेंशन चलेगा कि मुझे नहीं भेजना है? तो ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्यून करना है, दिस इज आवर क्वेश्चन टू यू। ओवर टू मेजर गुप्ता। मेजर गुप्ता, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर रोहित, am I audible to you now? Yes ma'am, perfectly fine. First of all, thank you. I was listening to Dr. Devdutt and I was also listening to Dr. Kaushik. बहुत ही relevant सवाल के साथ ये इशू आता है। पहले मैं बात करूंगी कि एक पेरेंट का नजरिया और एक बच्चे का नजरिया बहुत फर्क होता है। आज की तारीख में हर बच्चा, एक एवरेज बात कर रही हूं मैं, हर बच्चा अपने घर से बाहर जाना चाहता है, स्पेशली जब वो अपनी हायर एजुकेशन की बात करता है। हाउएवर आज की तारीख में अगर हम स्पेसिफिक सिचुएशन ले तो कोविड-19 की वजह से जो बाहर का सिनेरियो है, चाहे हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं या वो बाहर आपके शहर से बाहर की बात कर रहे हैं, वो अचानक से बदल गया है। तो बच्चा घर से आजादी चाहता है, बच्चा एक अच्छा कॉलेज चाहता है, बच्चा एक अच्छा एक्सपोजर चाहता है। Whereas when we talk of parents, they have a different outlook towards all these things, because a parent is looking at the security of the child, they are concerned about the welfare of the child, the long-term result of the institution where the child is going on. So my suggestion first is, before I give the solutions to it, there are some myths which have been broken. The first myth is, most of the people considered that only abroad a child can get the best education. That is not the case today. India has got a combination of conventional and non-conventional institutes today. So we are talking about a standard university. Let's say we talk of UPTU, or we talk of Dehradun University, or we talk of Delhi University, or such universities. On other side, number of private institutions have come up which can provide the similar kind of a education which is available in abroad. Now, this is about the institutions. Second point was, how is the safety and the concern? This COVID-19 is a black swan situation. It is 1 in 100 years that we have faced this kind of a pandemic, which has changed the situation. However, what is your purpose of education, that we need to understand, coming especially from the environment where a lot of people are business class families. So if you are looking at a degree which is only for the name of the degree, then possibly you can look at any institution which will give you a degree recognized by UGC. However, given scenario has changed the market for the admission for courses, because there are a lot of number of people who have come back from abroad. There are a lot of number of people who are withdrawn from the job, which would be available in the market to pursue the higher education. So the admission market is going to be tough. It is going to be competitive. For a child to understand that if he has to go in for a competitive environment, what is important? Are you getting the right exposure? Are you getting the right experience with them? Are you getting the right education? The new creative, innovative type of techniques which are used in the today's education system, will it equip you for the environment which you are looking for? So tomorrow, if you're looking for a job in the market, you have to equip yourself. Yes, parents have to come out of that mold
that they should be sure about where they are sending the child. Some of the suggestions for the parents are that please check out how the institution has reacted to a situation like this. That will instill the confidence in the institution. Check whether the institution has got good connectivity, whether the institution has got a parent and a teacher association. There is something called III, Institute Industry Interface. So it is not about only the industry, but does it have a parent interface also? Does it connect with the parent in time of crisis? Does it connect with the parent at the time of situations where a child is not performing well, which is typically not there in the conventional universities? So once you have that confidence that I have a connect with the parent, I have a connect with the organization, I have surety that my child will be looked after, and in case of any contingency, they will connect with me. That will instill that confidence. Right. So you should look at the ranking, you should look at the connectivity, you should look at the confidence which an institute or a university builds up with the parent. If you are looking at a dynamic education which equips your child to move into the industry tomorrow, because the industry and the job environment is going to be competitive, you should look at sending your child to the ranked institutes instead of sending them to any XYZ institutes. That is my suggestion to the. Thank you, Major Gupta. And I'm sure कि बच्चों को ये लग रहा होगा कि अगर उनको अभी भी बाहर जाना है पढ़ने के लिए तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं एडवोकेटिंग की भाई इंस्टीट्यूट अच्छा है, उसने किस तरीके के पेरेंट्स के साथ एसोसिएशन कर रखा है, कम्युनिकेशन कैसा है, तो यू हैव गॉट मेनी पॉइंट। और आप लोग पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए अपने अपने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये टेम्परेरी फेस है, इसके वजह से करियर के अंदर एक बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने 11th-12th में इतना मेहनत किया है कि आप IITs निकालें, NITs निकालें, NIFT में जाएं या वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ठीक है, वेट एंड वॉच एंड ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स, और आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। दिस इज वेरी गुड मैम, थैंक यू वेरी मच। नाउ मूविंग टू परवीन मल्होत्रा मैम। पहला क्वेश्चन इनसे रह गया था, अब मैम से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछना जा रहे हैं मैम, वो क्वेश्चन ये है कि किस तरीके के करियर चॉइसेस आने वाले समय के अंदर फ्लरिश करेंगे। बिकॉज इस पेंडेमिक ने ये तो बताया है कि इस वक्त जो IT इक्विप्ड करियर्स हैं या कोई इस तरीके के करियर्स हैं, वो वाले करियर्स शायद ज्यादा डिमांड में आए इन कंपैरिजन टू अदर। तो जो बच्चे डाइसी हैं अपने करियर सिलेक्शंस के लिए, तो उनको क्या क्या सोचना चाहिए और किस तरीके से आने वाले 5 इयर्स को या 4 इयर्स को आप इंट्रोस्पेक्ट करती हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोहित। ये बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि ये सवाल बार बार हर वेबिनार में मुझे पूछा जा रहा है। तो बिफोर आई टेल यू अबाउट द करियर्स ऑफ द फ्यूचर, यू नो, लेट मी टेल यू कि कौन सी हमारे ट्रेडिशनल करियर्स हैं जो इस कोविड से इम्पैक्ट हो चुके हैं, है ना। तो वो मैं ब्रीफली बता देती हूँ और उसके बाद आई विल कम टू द करियर्स ऑफ कि इनके अलावा क्या करियर्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो इजाजत है तो मैं क्विकली आपको बता दूं, है ना। नंबर 1, रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री जिसको हम एज वी नो इट टुडे हैज बीन टेरिबली ऑल्टर्ड एंड चेंज्ड एज फार एज टुडे एंड द फ्यूचर गोज। सेम गोज फॉर आवर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, है ना। लोग बिजनेस ट्रैवल वगैरह प्रिफर नहीं करेंगे, दे विल कम्युनिकेट थ्रू वेब चैट्स एंड सच लाइक। बहुत ही क्रिटिकल होगा तो पीपल विल ट्रैवल। इवन ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर वो 1-2 साल तक तो बंद रहेगा, है ना। लोग डरे हुए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर वो एयरलाइंस हो या शिपिंग हो या सरफेस ट्रांसपोर्ट हो या रेलवे हो, बहुत फूक के तो ट्रैवल इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवल इंडस्ट्री का एक कंपोनेंट है हॉस्पिटैलिटी। होटल्स वगैरह, लोग बहुत डर के होटल्स में जाएंगे और रहेंगे, तो दैट इज अनदर इंडस्ट्री। और सब लोग अगर घर से ऑपरेट करेंगे तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्ट होगी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट होगा। फिर सिनेमा,
People will prefer, अभी भी हम लोग सब we are accessing entertainment online, Netflix वगैरह हम online access कर रहे हैं, तो cinema industry is going to be impacted in a big way. People will not go even to small PVRs. डर के जाएंगे because you don't want to be social distancing norms वगैरह किस तरह से मेंटेन होंगे. तो ये एक बहुत बड़ा लोकल ट्रांसपोर्टेशन, उबर, ओला, ये सब भी बहुत इम्पैक्ट होगा. ऑलरेडी आपने देखा होगा कि उबर और ओला ने कितने सारे लोगों को निकाल दिए हैं. सो रेस्टोरेंट बिजनेस इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे. फिर कंपनीज ने देखा है कि भाई घर से काम हो सकता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक वगैरह, उन्होंने तो कहा है कि सितंबर 2021 तक 75% ऑफ आवर स्टाफ कैन हैप्पीली ऑपरेट फ्रॉम होम. तो फिर कंपनीज क्यों रियल एस्टेट के अंदर अपना पैसा फंसाएंगे. सो रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी फ्रीड अप. Companies are not going to invest in big time real estate and take up very expensive spaces. Another restaurant देख लिया हमने, luxury products. अगर आप बाहर ही नहीं जाएंगे तो आप नई जो मर्क आप ऑर्डर करने वाले थे या नया गुची बैग ऑर्डर करने वाले थे, उसका क्या फायदा, किसको दिखाएंगे आप अपनी मर्क या गुची बैग, है ना. सो लग्जरी प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे. लाइव स्पोर्ट्स, आप नेचुरली स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम में नहीं जाएंगे, है ना, बिकॉज ऑफ पब्लिक डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा. तो अगेन लाइव स्पोर्ट्स, लाइव मैचेस आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड. इसका एक और वर्जन आएगा जो हम विच इंडस्ट्रीज विल प्रॉस्पर इन पोस्ट कोविड, उसमें डिस्कस करेंगे. ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना कम हो जाएगा, तो बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन विल वेदर इट इज ऑन लैंड, सी और एयर, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे. इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सरकार करती रहेगी. ऑलरेडी वर्क इज स्टार्टेड एंड इट इज ऑन गोइंग. लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, हाउसेस वगैरह, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बहुत मंद चलेगा आने वाले दिनों में. फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि सिनेमा हॉल्स में लोग जाएंगे नहीं, तो फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत इम्पैक्ट होगी. आप सेट्स पे नहीं जाएंगे एक्टर्स वगैरह, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए आपको कितने किस्म के लोग चाहिए. आप देखो ना, जब एक फिल्म निकलती है तो उसके जो रोल्स होते हैं उसमें 250 और अलग अलग पीपल चाहिए होते हैं. हम तो सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर को देखते हैं, लेकिन पीछे, पर्दे के पीछे कितने लोग काम करते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गो टू वर्क बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स. सो दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे. फिनटेक प्रोडक्ट. मैडम बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. कुछ स्टूडेंट्स मेरे से लगातार पूछ रहे हैं कि मैडम ने जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो बताया, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या है. क्या उसमें जो बच्चे अभी से एडमिशन लेंगे तो क्या 4-5 साल बाद उनका जो करियर है इट विल बी इनटू डिमांड, या फिर वो भी अभी हैम्पर करेगा फैशन? मुझे लगता है कि डिजाइनिंग इम्पैक्ट नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरी अपनी डॉटर इन लॉ इज अ बिग हॉट शॉट डिजाइनर, और मैं देखती हूँ कि एक रिवर्स फीलिंग भी आ गई है मार्केट में. तो जैसे अभी हमारे दिल्ली में लॉकडाउन थोड़ा सा ईज हुआ ना, हम तो उसको कहते थे कि भाई तू क्यों अपनी वर्कशॉप खोल रही है, बट देयर आर लेडीज वो वेट कर रही थी कि कब ये खुले और हम एक नया ड्रेस खरीदे. हाँ, तो शायद वो चलेगा, और जरूरी नहीं वो बुटीक्स में नहीं जाएंगी या बड़े बड़े मॉल्स में नहीं जाएंगी, पर ऑनलाइन तो परचेज होगा ही. आप मिंत्रा पे जाएंगे या जो भी ये ओगान है वगैरह है, फैब इंडिया है, तो आप उनसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, क्योंकि कपड़े तो आपको चाहिए ना. तो मे बी हाई फैशन थोड़ा इम्पैक्ट होगा. लेकिन आई होप प्रियांशु आपको आपका आंसर मिल गया होगा मैडम मल्होत्रा से कि फैशन डिजाइनिंग स्टिल हैव अ स्कोप. तो अगर आप उसमें एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, सो इट कैन बी एट अ सेफर साइड. बिल्कुल. हाँ, अब रही बात कि कौन सी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी, है ना, जी, आने वाले दिनों में.
तो कौन सी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी इस पे हम लौट कर आए, जब तक एक क्वेश्चन हम लोग आगे ठीक है, बढ़ते हैं एंड देन वील कम इनटू दैट फेज। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू मैडम देवदत्त मैम। आई एम श्योर कि जिस तरीके से स्पीकर सब बता रहे हैं और जो वॉइस क्लियरिटी है, ऑडिबल है, वो सब बिल्कुल ठीक जा रहा है, बिकॉज मुझे बहुत सारे पिंग्स मिल रहे हैं लगातार बहुत स्टूडेंट्स के कि उनको काफी सारे आंसर्स मिल रहे हैं। मैडम देवदत्त, द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू व्हिच द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग, what are the expectations from the government sector? What changes in the policies will come into force? What kind of resources can students expect? स्टूडेंट्स का जनरली ये रहता है कि 12th के बाद ही बहुत सारे जल्दी से वो कि मुझे अभी से गवर्नमेंट का तैयारी करना है, मुझे आईएएस निकालना है, यूपीएससी निकालना है, ये सब चीजें देख रहे हैं और इस सब को कोरोना वॉरियर्स को भी देख रहे हैं जो कि राउंड द क्लॉक और ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। क्या बच्चों को अभी गवर्नमेंट सर्विसेज या कुछ इस तरीके की पॉलिसीज हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ इस तरीके का भी आ रहा था कि जो बच्चा अपने मन से आर्मी में सर्व करना चाहेगा तो 2 साल के लिए उसको कुछ मिलेगा, या समथिंग फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को अभी इस तैयारी के लिए व्हाट टाइप ऑफ अ माइंडसेट द स्टूडेंट शुड हैव? मैम देखिए, चेंजेस तो बहुत से आएंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि देयर विल बी सर्टेन करियर जो कि पीछे हो जाएंगे और कुछ करियर जो अब आगे आएंगे। तो जो आपका सवाल है कि गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर एजुकेशन की बात करें तो सबसे बड़ा तो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से ये है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जहां पर कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं वो पीछे रह जाए और जो एडवांटेज सेक्शंस हैं वो ही आगे बढ़ पाए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट द वेलफेयर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। और इसमें मैं कहूंगी कि क्योंकि अब आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्पेशली इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग आर गोइंग टू फॉलो द ब्लेंडेड मॉडल ऑफ एजुकेशन। Blended model of education means that some of the content will be delivered in the classroom and some of the content will be delivered online. तो गवर्नमेंट की ड्यूटी यहाँ पर यह है कि नेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं। जैसे विलेजेस में भी या छोटे शहरों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो मोबाइल के रेट्स हैं उनको ऐसा नॉर्मलाइज किया जाए कि दे बिकम अफोर्डेबल। So the infrastructure which is required for digitalization of education, that infrastructure the government will have to provide. और उसमें जो इवन जो विलेजेस में स्कूल्स हैं या जो छोटे शहरों में स्कूल्स हैं, स्कूल्स को भी उन्हें वो टेक्नोलॉजिकली साउंड बनाना जरूरी होगा। तो अभी तक जो हमारा था कि बिल्डिंग होनी चाहिए, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग के साथ साथ में डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी हम प्रेवलेंस करें, ताकि जो स्टूडेंट फेस टू फेस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी कोई डिसएडवांटेज ना हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट अगर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, तो आगे का जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पर चेंजेस बहुत आराम से किए जा सकते हैं। जैसे कि चेंज अभी तक जो एम्फोसिस था दैट वाज ऑन द 3 आवर्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। अब जो आने वाले सिस्टम में एजुकेशन होगा उसमें भी 3 आवर्स होंगे, बट दीज 3 आवर्स विल बी रिलेशनशिप, रेलेवेंस एंड रिदम एंड रूटीन। मतलब कि रिलेशनशिप मीन्स that not just, you see, a child goes to school not only to get the knowledge but also to learn social skills, to make social networking, to learn how to get along in the world. तो ये relationship building is very important. तो जो टीचर्स ऑनलाइन भी डिलीवरी कर रहे हैं उन्हें भी ये रियलाइज करना है कि हमें सिर्फ कंटेंट नहीं देना है, लेकिन जो एक ऑनलाइन अगर जूम मीटिंग से बच्चों के साथ हम संवाद कर रहे हैं तो हमें बच्चों के we have to look at the emotional connect also with the children, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, how they are feeling, how they are they having any difficulties and so on. दूसरा है relevance. Relevance means a child will be able to learn only if he knows why he is learning what he is learning. कि जो भी सब्जेक्ट हम उसको पढ़ा रहे हैं उसको ये पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की रेलेवेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। अगर उसको ये रेलेवेंट नहीं लगेगा तो उसका मन उससे हट जाएगा। लेकिन अगर वो ये जानता है कि ये सब्जेक्ट हमें इस तरह से हेल्प करेगा,
हमारी लाइफ में ऐसे कंट्रीब्यूट करेगा, तब वो उसको ज्यादा फोकस कर सकता है। और तीसरा चीज, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी। एक आदित्य कौशिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं और वो ये जी। जानना चाह रहे हैं कि क्या साइकोलॉजी जो करियर है आने वाले समय में, अगर बच्चा जी। साइकोलॉजी में लेता है तो उसका जो इम्पैक्ट है या इसके जी। उसको जानना या पढ़ना या उसको आगे फ्यूचर में करियर स्कोप किस तरीके से रहेगा? Okay, so a very good question. I am really happy about this question क्योंकि psychology is the subject of the future. आने वाले टाइम में आप देखिए ऑलरेडी ऐसा है कि डिमांड साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा है एंड देयर आर जस्ट नॉट इनफ ट्रेन्ड पीपल इन द कंट्री टू हैंडल दैट डिमांड। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों ओर मेंटल इलनेस के केसेस बढ़ रहे हैं। सिवियर मेंटल इलनेस उतना नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन डे टू डे स्ट्रेसेस हैं वो लोगों के ऊपर हावी हो रहे हैं। तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, अंडर अचीवमेंट, एकेडमिक अंडर अचीवमेंट है, इस तरह की जो इश्यूज है वो बहुत प्रेवलेंट है, बहुत वाइड स्प्रेड है। तो ऑलरेडी ये देखा जा रहा है कि जितने काउंसलर्स की जरूरत है, आप ये सोचिए कि हमारे 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के लिए ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से लगभग 3000 लोग हैं पूरी कंट्री में जो ट्रेन्ड है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो बहुत इन डिमांड है। यस, तो ये इतना बड़ा गैप है जिसको कि भरना बहुत जरूरी है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड अभी भी है। आप देखिए कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि काउंसलर रखना चाहते हैं लेकिन उनको ट्रेन काउंसलर नहीं मिलते हैं, तो मुश्किल होती है। तो ऑलरेडी देयर इज अ ट्रेमेंडस गैप और ये गैप बढ़ने वाला है। तो जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं और जो भी बच्चे आगे का अपना सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं, I would definitely recommend that if you are interested in people, if you are interested in relieving the distress of people, आपको लोगों में इंटरेस्ट है, आप हार्ड वर्किंग और सिंसियर हैं, तो आप साइकोलॉजी को एज अ करियर जरूर अपनाएं। ये केवल एजुकेशन की फील्ड में ही नहीं, पर क्लिनिकल जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस में, industrial organizations, every kind of organization needs somebody who can handle the manpower there, who can handle the workforce there. और आप देखो कि sectors like sports psychology are opening up in a big way. तो साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो कि हर जगह डिमांड में है, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो। Thank you very much, ma'am, for your this answer. And now moving to the next question to ma'am Kaushik. The next question, ma'am, which the students want to know is that do the students have the flexibility to switch between the streams after high school? If yes, then how can they be? For example, बच्चे ने 11th क्लास के अंदर साइंस साइड ले लिया था, लेकिन अब 12th में जब वो आया है तो उसको पता चल रहा है कि भाई मैथमेटिक्स सही से काम नहीं कर रहा है, या कॉमर्स के अंदर फाइंडिंग दैट समथिंग, या फिर 12th तक वो कर लेता है, तो क्या ग्रेजुएशन के अंदर क्या वो अपने करियर इंटरचेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने पीसीएम से अपना 12th किया है तो जनरल कंसेप्शन होता है कि बच्चा जो है साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट में जाए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और समथिंग लाइक दिस, लेकिन बच्चा उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है, तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के पास है कि वो अपने करियर को चेंज कर सके, अपने सब्जेक्ट के सिलेक्शन को चेंज कर सके? हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी हद तक बच्चों के पास है। डेफिनेटली यस, साइंस का बच्चा तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में अकोमोडेट हो सकता है, बट कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे के लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट वो साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में वापस नहीं जा सकते या ग्रेजुएशन कोर्सेज में उस स्ट्रीम में स्विच नहीं कर सकते। बट यस, आजकल वो वाला टाइम है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे ने साइंस ऑप्ट कर लिया है, 11th 12th उसने किसी तरीके से पास कर लिया, बट ग्रेजुएशन में उसको लगता है कि वो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, तो वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज जा सकता है। और ये वाला टाइम ऐसा भी है जब बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा कॉमर्स का है और वो कॉमर्स में आगे ग्रेजुएशन कर रहा है, बट साइड बाय साइड कुछ इस तरीके के और एक्स्ट्रा कोर्सेज करना चाहता है जो समहाउ रिलेटेड टू पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और सोशल वर्क डिपार्टमेंट और समथिंग रिलेटेड टू साइंस और ह्यूमैनिटीज का मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ इस तरीके के सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। सो ऑनलाइन पोर्टल्स की मदद से भी वो साइड बाय साइड कुछ सेकेंड डिग्री या सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकता है। तो ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी साइंस वाले बच्चों के पास तो बहुत ज्यादा है कि वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में स्विच कर सकते हैं अलॉन्ग विद अपना डोमेन कैरी करने के साथ साथ। बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के लिए है कि वो साइंस रिलेटेड
में नहीं जा सकते, बट और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने प्रोफेशन में रहिए, अपने प्रोफेशन में ग्रेजुएशन करिए और साइड में कोई भी इस तरीके के जो फुलफिलिंग और कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज हैं वो आप ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं और इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैडम ऋतु, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स के लिए कौन कौन से करियर्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को देखने चाहिए, कि बच्चे के पास कॉमर्स है लेकिन मैथ्स नहीं है उसमें, तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस को बच्चे को देखना चाहिए? मैडम कौशिक, आई एम ऑडिबल टू यू? या ऑडिबल। हाँ, सो मैम, तो कॉमर्स वाले बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है तो वो ऐसे कौन से करियर्स हैं जो विदाउट कॉमर्स होते हुए, विदाउट मैथ्स के वो लोग जा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, करियर्स विद कॉमर्स विदाउट मैथ्स। या करियर्स इन कॉमर्स विदाउट मैथ वाले, उसमें बेसिकली बच्चों के पास ठीक है मैथ की वजह से बच्चों को थोड़ा एक अपर एज तो रहता है एज फार एज द कैलकुलेशन बेस्ड प्रोफेशंस आर कंसर्न्ड और प्रोफेशनल कोर्सेज आर कंसर्न्ड, बट अगर नॉन मैथ भी है तो अगर 10th तक बच्चे ने मैथ पढ़ा है, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है या बीबीए है, बीबीए है, एमबीए आगे करना है, तो ये वो वाले प्रोफेशंस हैं जिसमें बेसिक मैथ का जानकारी होना चाहिए, जो कि बच्चे ने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है तो उसमें उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिक ऑनर्स हुआ या बीकॉम ऑनर्स हुआ, उसके लिए तो मैथ का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट आपको कॉमर्स विद मैथ होना चाहिए या इकोनॉमिक्स विद मैथ होना चाहिए इन क्लास +2 लेवल पे, और उसके बगैर आप इस कोर्स में नहीं जा सकते। बट और जो जितने प्रोफेशंस हैं, चाहे वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे कंपनी सेक्रेटरी है, लीगल प्रोफेशंस हैं, होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, फैशन है, सो इस तरीके के ये वो वाले कोर्सेज हैं जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ या बेसिक कैलकुलेशंस जो आपने क्लास 10 तक किए हैं वो उतना सफिशिएंट है जो आपको हेल्प करेगा आगे की चीजों में। बट यस, अगर आपके पास मैथ नहीं है तो सीए में थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज एक अकाउंट्स बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैथ ना होने की वजह से आप उस प्रोफेशंस में या उन कोर्सेज में नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि बच्चों को ये सब रहा होगा कि मिस कर रहे थे, तो by having our expert opinions are able to do little bit संवाद कि हाँ हमारी क्या क्वेरीज है उसके आंसर मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू आवर एक्सपर्ट मेजर नुपुर गुप्ता। मैम, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं लगातार most of the students who are highly inclined towards defense services. How can a student prepare for exams like NDA online and being at home? या फिर आने वाले समय में आर्मी के अंदर भी कुछ चेंजेस होंगे, या फिर बच्चे जो कि आर्मी के बहुत ज्यादा लगाव है और बहुत ज्यादा डिफेंस फोर्सेस उनका हिस्सा 12th के बाद तुरंत एनडीए के एग्जाम निकालने होता है, तो उनके लिए ऑनलाइन या फिर इस तरीके से उस प्रिपरेशन करना चाहिए। और मुझे लगता है आपसे बेटर इसका कोई आंसर दे नहीं सकता है, because we also is the officer now. Thank you, over to you, ma'am. थैंक यू रोहित, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। और बहुत सारे बच्चे आर्मी को, मैं सिर्फ जब आर्मी वर्ड यूज कर रही हूँ तो मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए डिफेंस सर्विसेज यूज करूंगी कि भाई वो सभी इन एरियाज में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। मैं पॉइंटर्स के तौर पर बताऊंगी बिकॉज डिस्कशन इसके ऊपर अपने आप में इतना लंबा हो जाएगा कि हम सारे पॉइंट्स नहीं कवर कर पाएंगे। सो पहली चीज, डिफेंस सर्विसेज के अंदर एंट्री 2 लेवल पर हो सकती है, एक 12th क्लास के बाद और एक कॉलेज के बाद। उनमें से कुछ ऑप्शंस होते हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होते हैं और कुछ ऑप्शंस होते हैं आईएमए के थ्रू, जो एनडीए से आईएमए बच्चा जाएगा या ग्रेजुएशन के बाद आईएमए में जाएगा जो परमानेंट कमीशन के लिए जाएगा। हाउएवर बच्चों के पास एक ऑप्शन होती है कि 20 साल की सर्विस करने के बाद जो परमानेंट कमीशन वाला बच्चा है वो फौज छोड़ सकता है, और जो शॉर्ट सर्विस वाले कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वो 5 साल की सर्विस, 10 साल की सर्विस और 15 साल की सर्विस, गिवन कि वो कितना लंबा काम करना चाहते हैं फौज के अंदर, वो फौज को छोड़ सकते हैं। पर बिफोर कोई भी बच्चा ये डिसाइड करता है कि उसको आर्मी में ज्वाइन करना है, तो ये डिसीजन वो बहुत सोच समझ कर ले। मैं ये किस लिए कह रही हूँ, बिकॉज आर्मी इज नॉट जस्ट अ जॉब, आर्मी इज अ लाइफस्टाइल which is totally different from your normal 9 to 5 job.
So if you are looking at, and no other job, though every job has a professional hazard, some have pros, some have cons, and depending upon what kind of job it is. But then army is something which asks you for your life. So if a situation like this comes over, we have to be ready to give your life for the nation. And this dedication does not happen with everybody. You want the life of the army, you look at the perks and privileges, you look at the lifestyle of the army, which possibly is all these images which have been created through advertisements and the good cantonments and the good lifestyles we enjoy. But it is a lifestyle which asks you to be 24/7, 365 days, and for all 20, 40 years, whatever you are serving. So you are not serving for a job for 9 to 5, it is a lifestyle. First. Second, जब एक एनडीए के लिए वो बच्चा चाहते हैं, या कोई भी बच्चा बहुत छोटा होता है, so just at the age of 16 and 17, आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि you have to get into defense services. एनडीए आपको ऑप्शन देता है 3 साल में 6 बार एनडीए का एग्जाम अपीयर करने के लिए from the age of 16 to 19. That means you can appear for NDA paper 6 times, twice in a year. Second, the process for NDA selection goes from NDA paper, then to SSB, then to medical. So it is not one step paper that you qualify paper and you go through. Like any other process, there is a 3-step paper that you go for a written paper, then you go for your SSB, which is a 6-step process. And if you qualify for that, you qualify for appearing for medical. Now to understand, there was a question which was placed to Dr. Kaushik, that what happens without maths. This is something important. Anybody who is looking at joining the army, you have an added advantage if you have maths, and rather not only army or any other field, if you have maths as a subject, you will have an added advantage if you are appearing for any competitive paper, because that will, each paper of any competition will have some component. The difficulty level might change, but would have some mathematical component, so that will help you to cater to that section of it. Now the NDA paper, when we come to the NDA paper per se, it would have some component of mathematics, which is for 2.5 hours, 300 marks. And the other component of the paper is around 3 hours, which would have physics, chemistry, English, general knowledge, geography, history, and general science, which combines for 600 marks. So your total marks for NDA paper is 900 marks. It doesn't make much of a difference when you are a science 12th student or when you are a commerce 12th student, though having science has an added advantage. But then if you look at the breakup of English is 200 marks, the breakup of science is 160 marks, the breakup of history and geography is 160 marks. General science is 40 marks and current affairs is 40 marks. So if you see that even if you are a non-science student, the proportion of marks are so divided that if you have an edge in the history and geography, you might not have an edge in the science side. But if you have an edge in the chemistry and physics side, you would have an edge against the history and geography student. If you look at the data of last year, last exam which happened in NDA, 10 lakh students appeared. Only 7,000 qualified for NDA SSB. Out of those 7,000 students, the proportion is 1:20, and there are only 350 to 400 seats which are available in NDA, which is inclusive of Army, Air Force and Navy. So the competition is going to be tough. There is no doubt about it. But generally children have a misconception that only they are looking for a brilliant child or a topper child, and the merit is decided on those top children who are on those 99 or 100% marks of those students. No, this is the biggest myth most of the students have. Army is not looking for the most brilliant student. No, the services are looking for a child
who has a holistic personality, has some capability as a leader because he is going to be leading as an officer. And yes, English plays an important role because the language of communication is English when it comes to officers. And since you have to communicate in that language, you need to know language very well. Even in the examination for NDA, you have a component of 200 marks, which takes care of your NDA entrance exam. So this is as far as your entrance exam is concerned. A major challenge a child is facing today, that all of a sudden we were used to that taking out a textbook, preparing through a textbook, practicing through an examination paper, and now the whole process has moved to online processes. Though NDA still has not declared that they are going for a online process at home, which other universities has moved to, they are still looking at a NDA paper through a NTA agency. There are number of the thing which is crucial here is, one is the speed, second is your practice. How much have you practiced? So there are some of the platforms which I'm going to tell you, which a student can write down, which have got previous year sample paper, or they have created their own sample paper, which give you an option after doing those sample papers that they will give you not only the answer, they will also analyze that which were the area where you were weak. So let's say you were weak in mathematics, or you were weak in particular section of mathematics. The mathematics paper is divided in arithmetic, mensuration, algebra, geometry, trigonometry, and statistics. So they would, other than your GK and English, because you can easily identify where did you falter. But in maths is the problem that you can't identify, or the logical reasoning or rational reasoning are the sections where you can't identify where did you lack. So you can analyze those answers and see which component of yours is weak, and I need to work hard, develop my skill and develop my speed. Thank you. So look back at those Thank sections. you, ma'am. As I was expecting, you are the best. I was expecting you are the best person to better this question, and it seems the same way, because the postmortem or the detailed analysis we have done for the collection into our army is brilliant into it, and I'm sure the students might have a clear idea and a clear broader way picture into their mind. They are trying towards the defense forces, so what all they have to keep into mind. Thank you very much, ma'am. Now I'm moving to in case a student जो पहले कन्वर्सेशन रुक गया था, वो वाली कन्वर्सेशन रुक गया आने वाली है, वो तो हम लोगों ने आपसे सुन ही लिया, जान भी लिया. ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है मैम, अब वो वाले पार्ट पे शुरू करेंगे कि जो आने वाले समय में 4-5 साल तक बूम पर रहेंगी. और ये जो वर्क फ्रॉम होम चला है एक, ये क्या आगे वाले इंडस्ट्रीज के अंदर एक पर्टिकुलर नॉर्मल रूटीन हो जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम जॉब अवेलेबल रहेंगी, या फिर कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज रहेंगी जो फील्ड में भी लोगों को वापस दोबारा से एंटरटेन करेंगी? ओवर टू यू मैम. बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि पहले तो मैंने डरा दिया कि ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लेकिन एक चीज बंद होती है तो दूसरी चीज खुल जाती है, यू नो. सो वन डोर क्लोजेस 10 विंडोज ओपन. ऑलराइट, नाउ व्हिच आर दोस विंडोज दैट विल ओपन? वेरी एक्साइटिंग. हमने देखा ही है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री कितना डिमांड है, हम कोप नहीं कर पा रहे हैं. हमारे पास हॉस्पिटल्स उतनी नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है. सो हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्ट स्टाफ, यू नो, हमें सिर्फ डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होती है. वी रिक्वायर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, वी रिक्वायर फार्माकोलॉजिस्ट, वी रिक्वायर ये जो वेरियस मेडिकल इक्विपमेंट होता है उसको कैसे हैंडल करना. ऑल दीज पीपल, पब्लिक हेल्थ is going to be a very big field in the coming years. Alternative medicine, because लोगों ने देख लिया है कि सिर्फ
एलोपैथिक मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो कितने नुस्खे, होम्योपैथिक नुस्खे और आयुर्वेदिक नुस्खे और योगिक नुस्खे फ्लोटिंग अराउंड है ना। सो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज गोइंग टू बूम इन द इयर्स टू कम, नेचर क्योर, योगा वगैरह। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट MBBS करना एंड MD करना. Then you will require nutritionists, dietitians, and not just general nutritionists and dietitians जो आपका मोटापा कम करे. There are clinical nutrition. वो मेरे लिए भी जरूरी है, बताइए हाँ, प्लीज। हाँ, आपको तो मैं खास बताऊंगी क्योंकि you require sports nutritionists, you know, हर प्रोफेशन के लिए, क्योंकि सब लोग अगर घर से बैठ के काम करेंगे और खाते रहेंगे और सेडेंट्री लाइव्स लीड करेंगे, मूवमेंट कम होगा, तो लाइफस्टाइल डिजीजेस, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह वगैरह, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत बढ़ेंगे। और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, इनके लिए nutrition is a very specialized, dietetics and nutrition is a very specialized field called clinical dietetics. तो क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी को डायबिटीज है, हाँ, तो उसको कुछ चीज वर्जित होती है, लेकिन अगर डायबिटीज है और उसकी किडनीज अफेक्टेड है, तो जो वो डायबिटीज में खा सकता है वो किडनी प्रॉब्लम को लेकर नहीं खा सकेगा। सो यू नो दे कैंसल आउट। प्लस अगर आप एक साउथ इंडियन को कहोगे कि भाई तुम स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाओ एंड बॉइल्ड मटर खाओ, तो वो 2 दिन खाएगा, तीसरे दिन ही विल वांट टू गो बैक टू हिज स्पाइसी फूड। एंड उसकी फैमिली के अंदर भी फिट इन करना चाहिए जो आप डाइट बता रहे हैं। आप किनोआ और ये फैंसी चीज उनको बताएंगे, एक एवरेज पर्सन ये सब नहीं फॉलो कर सकता है। So you require very specialist nutritionists, dietitians who आपका लाइफस्टाइल देखते हुए आपको रेगुलेट करेंगे, आपकी डाइट और आपका न्यूट्रिशनल इंटेक। ऑलराइट, फिर आपने देखा है कि ये जो समय है कितना इम्पोर्टेंट है। आज आप, आई वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्पीकर ऑन दिस पैनल, पर कितना हमें ये टेक्नोलॉजी को लेके, वाईफाई को लेके प्रॉब्लम हुआ। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स, डेटा साइंसेस वगैरह वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। सो आपको डिजिटल मार्केटिंग से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों पे बहुत ही आपको फोकस करना होगा। इवन आप प्योर डेटा साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना जाएं, आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी से दोस्ती करनी है। पानी में रहते हुए आप मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते। सो एवरीवन हैज टू बी डिजिटली savvy and this thing, हर बार आप अपने you can't call people। अब मैं आजकल ऑफिस में घर से ऑपरेट कर रही हूँ, तो मैं अपने टेक्निकल गाय को नहीं बुला सकती, कंप्यूटर गाय को, कि भैया मेरा ये नहीं लग रहा है, भैया मेरा ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये मेरे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम। सो आई हैव टू विली निली लर्न टू वर्क ऑन माई ओन। आज हम वेबिनार जैम पे ऑपरेट कर रहे हैं, कल मैं जूम पे कर रही थी, उसके पहले मैं गूगल मीट्स पे कर रही थी, उसके पहले मैं सिस्को प्लेटफॉर्म पे कर रही थी। आई मस्ट नो, अगर मुझे सर्वाइव करना है, आई मस्ट नो हाउ टू navigate all these platforms on my own, and all of us will have to do it, not just me and you. All right, so एक डिजिटल साइंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल दिस, ये तो सबके लिए कंपल्सरी है। Another one very big industry that is going to boom in a very big way is the gaming industry, online gaming industry। क्योंकि आप बाहर नहीं जा पाएंगे, आप बाहर खेल नहीं पाएंगे, तो ज्यादा न आप देखिए कि ये कोविड के ड्यूरेशन में कितने मिलियन डाउनलोड्स ऑफ वीडियो गेम्स हुए हैं, एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द ईयर। डिजिटल लूडो चल रहा है, सभी लोग उसको खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको ये लूडो डेवलप करना है ना,
जो हमारा नॉर्मल लूडो है उसमें 4 बंदे खेल सकते हैं, डिजिटल लूडो में 6 जन भी खेल सकते हैं, कल 8 जन भी लग जाएंगे, है ना। तो आपको ये करना है, आपको गेम्स को डिजाइन करनी है, गेम को पहले कंसेप्चुअलाइज करना है, फिर उसको उसकी कोडिंग करनी है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री। इसमें एनिमेशन वगैरह का भी समावेश होता है और इसमें फिजिक्स का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। फिर आप रेस्टोरेंट में तो जाकर नहीं खाएंगे, है ना, लेकिन आप फूड डिलीवरी चाहिए। आप बोर हो जाते हैं ना घर में खा के और घर की दाल रोटी, तो आपको फैमिलीज हैव बिकम वेरी वेरी फूडीज। मैं देखती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स हैं, all the time they are ordering from छोटे छोटे फूड डिलीवरी स्टेशंस एंड पीपल। तो ये एक इंडस्ट्री आएगी। होम गार्डनिंग, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि आप यू विल नॉट बी एबल टू गो ऑल द टाइम टू मंडीज एक्सेट्रा। तो मैं देख रही हूँ मेरे फ्रेंड्स और मैं खुद कर रही हूँ, इतना ज्यादा होम गार्डनिंग के ऊपर एम्फेसिस होगा। सो वी नीड पीपल हु कैन सेल होम गार्डनिंग प्रोडक्ट्स, we need people who can guide people on home gardening projects, उनको नॉलेज दे कि कौन सी चीज कब उगानी है और क्या फर्टिलाइजर, और कीड़ा पड़ गया तो क्या करना है वगैरह वगैरह। सो ये एक चीज बहुत बूम करेगी। फैंसी पॉट्स की जरूरत, लाइट वेट पॉट्स, और क्योंकि अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो वाटर प्रूफिंग अगर नहीं है तो क्या आप टेरेस गार्डनिंग नहीं कर सकते। तो देयर आर नाउ सो मेनी न्यू वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट हैव कम। तो ये दिस इज वन इंडस्ट्री दैट इज गोइंग टू बूम। फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि हम घर पे बैठे हैं और एवरीथिंग हैज चेंज्ड पोस्ट कोविड, सो आपको हमें एडवाइस चाहिए कि हमें इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है कि कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स में जाना है, स्टॉक मार्केट में जाना है। उसमें लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर लर्निंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, सम आर डूइंग फॉरेक्स, सम आर डूइंग डे ट्रेडिंग, सम आर डूइंग एल्गो ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह। तो ये फाइनेंशियल प्लानर्स की भी बहुत जरूरत होगी। Alternative energy, क्योंकि we have become so conscious of pollution levels, और हम देख रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद होने से हमारा एनवायरनमेंट कितना खुल गया है और कितना वंडरफुली प्योर हो गया है। तो अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस होगा कि हम विंड एनर्जी यूज करें या एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, और अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज, हम सोलर एनर्जी यूज करें। अफिलिएट मार्केटिंग, दैट इज गोइंग टू बी अनदर वेरी बिग फील्ड ऑफ द फ्यूचर। तो एक चीज बंद, मेंटल हेल्थ तो हमने डिस्कस कर ही लिया। देवदत्त मैम ने बताया कि कितनी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत। मैं तो देख रही हूँ कि आजकल सब लोग कोविड के स्टेटिस्टिक्स झाड़ रहे हैं ना ऑल द टाइम, कितने डेथ हुए, कितने अफेक्ट हुए, कहाँ इम्पैक्ट हुआ, अमेरिका में कितना हुआ। अब घर में बैठकर डे इन डे आउट एडल्ट्स यही बात करते हैं। कैन यू इमेजिन कि जो छोटे बच्चे हैं, जब ये लोग ये बात सुनते हैं, जब वो डेथ की बात सुनते हैं, तो वो बेचारे कितने अफेक्ट होते होंगे। पेरेंट्स आर नॉट कॉन्शियस। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल of what you discuss at home and how you interpret it for your children, because they are not able to process this kind of information. और कितने मुझे calls आ रहे हैं of children who are panicking, getting panic attacks, वो अपने माँ बाप को नहीं कह सकते। So you require people, mental health experts who can guide people. आपके फैमिली के अंदर डेथ हो गई कोविड को लेकर। मेरे कजिन, my first cousin died recently. He was in Chicago. हाँ, तो सडनली अब उसकी जो फैमिली है, जो उनका बॉडी भी नहीं घर आ पाया फैमिली के साथ। तो इन लोगों की मेंटल परिस्थिति क्या होगी, उनको भी तो हमें काउंसल करना है so that they can regain normality. So that is another thing. Mental health is going to be a very big issue. Public health, as I already said, is going to be a very big issue. So बहुत entrepreneurship, जब इस तरह की, जब नॉर्मल इकोनॉमी हमारी बंद होती है ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज बूम। जो भी सर्विसेज है, फिर वो मास्क क्यों ना हो, सैनिटाइजर्स क्यों ना हो, वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना हो,
ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जिसकी आपको लगता है कि लोगों को जरूरत है, और आप अगर घर बैठकर या छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो उस मैम इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। जैसे कि हम लोगों ने 4-5 इंडस्ट्रीज को देखा कि मेडिसिन वाली इंडस्ट्रीज में, डिजिटल इंडस्ट्रीज के अंदर, और कुछ गार्डनिंग और ये वाला, इसी में एक कुछ बच्चे हैं जो लगातार मुझे पिंग कर रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्रिएटिव इंडस्ट्री, क्रिएटिव कोर्सेज ऐसे कौन कौन से हैं जिस क्रिएटिव कोर्सेज के अंदर, जैसे कि गार्डनिंग मुझे काफी क्रिएटिव लगा कि एक है, इस तरीके के और कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चे स्टूडेंट 12th के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक क्रिएटिव कोर्सेज? मैम बिल्कुल, देखिए क्रिएटिविटी इज अ गिफ्ट। सपोज मेरे में नहीं है ना, तो आप मुझे दुनिया की बेस्ट डिजाइन स्कूल में डालेंगे ना, तो मैं एक मीडियोकर डिजाइनर बनूंगी। लेकिन अगर आप में वो है तो आप, यू शुड बी सो ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि जो क्रिएटिव करियर्स हैं, दोज आर द करियर्स ऑफ द फ्यूचर। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है विच इज नॉट इम्पैक्टेड बाय क्रिएटिविटी। आज ये जो प्रोग्राम है ना, आपने जो इसके प्रोमोज बनाए, वी रिक्वायर डिजिटल ग्राफिक डिजाइनर्स टू डू दैट। ये जो इंटरफेस है वेबिनार जैम का, दैट हैज बीन डिजाइन्ड बाय डिजाइनर्स। अपने आप नहीं हो गया, इसमें टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत थी और डिजाइनर्स की जरूरत थी। ऑलराइट, अब जो मास्क आप देखें ना, कितने नए नए किस्म के मास्क आ रहे हैं जो आपके आउटफिट के साथ मैच करे। स्कार्फ को लेके आप कर सकते हैं, आप टी शर्ट को काट के कर सकते हैं। ऑल दीज इनोवेशंस ये डिजाइनर्स करते हैं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आपने जो जैकेट पहना है, अब हम घर से ऑपरेट करेंगे तब हम किस टाइप के कपड़े पहनेंगे। ये जो आज मेरा कंप्यूटर के साथ मेरा ब्लूटूथ नहीं कनेक्टेड था, तो किस तरह के ट्रांसपेरेंट ईयरबड्स होंगे जो दिखेंगे नहीं आने वाले दिनों में। ऑल दिस डिजाइनर्स करेंगे। तो और सबसे बढ़िया बात डिजाइन की ये है कि आपको शुरू से तय नहीं करना है कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है या प्रोडक्ट डिजाइनर बनना है या फुटवेयर डिजाइनर बनना है या ज्वेलरी डिजाइनर बनना है या वेब डिजाइनर बनना है या फलाना यूजर यूएक्स डिजाइनर बनना है। सब डिजाइन कोर्सेज में पहला साल इज अ फाउंडेशन ईयर, ऑलराइट, in which you are exposed to maybe 20 different, 30 different areas of design. So आपको टाइपोग्राफी, कलर, फॉर्म, शेप, स्पेस, एम्प्टी स्पेस का क्या कनेक्शन है इमेज के साथ, ये सब सिखाया जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आप अपने कोऑर्डिनेटर के साथ बैठकर डिसाइड करेंगे कि मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है कि डिजिटल डिजाइनर बनना है कि वेब डिजाइनर बनना है कि क्या डिजाइनर बनना है ना। सो लेकिन द ब्यूटी ऑफ डिजाइन कोर्सेज इज फैंटास्टिक। जो ट्रेडिशनल करियर्स है ना, वो आपके करियर्स 3 या 4 साल के से ज्यादा नहीं सर्वाइव करेंगे, बिकॉज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ऑल दीज ट्रेडिशनल करियर्स विल बी डिफंक्ट और रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स। जो 10 आदमी काम कर सकते हैं ना, जो काम वो एक रोबोट कर लेता है, और कल 100 आदमी का काम कर लेगा, है ना। बट यू नीड टू डिजाइन रोबोट्स, you need to make them more and more efficient. And designing is not only about drawing and painting. आप Google का जब आप Google खोलते हैं और आपका वो जो पेज खुलता है, that is such a fantastic example of designing. क्योंकि आप Google पे क्यों जाते हैं? To search. So the main thing that opens is the Google search bar, है ना। No other clutter. बस एक मेल है वहां और 2 images है। So आपको, whether it is designing a website, whether it is designing this chair, whether it is designing this chashma rimless, whether it is designing this glass, whether it is designing this mouse, whether it is designing this pencil, designers के बिना आने वाले दिनों में दुनिया नहीं चलेगी। और दूसरी बात, जो डिजाइन फंक्शन है ना, जो ह्यूमन बीइंग में जो दिमाग में क्रिएटिव फंक्शन चलता है, ये फंक्शन रोबोट रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज द क्रिएटिव प्रोसेस इज सच अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस in the mind that a robot, I think, for the next 10 years will not be able to replicate. तो आपका करियर सेम रहेगा। तीसरी एक लास्ट बात,
कि आपने सपोज गलती से गलत डिजाइन कोर्स चूज कर लिया है ना, इंटीरियर डिजाइन कर लिया, कोई बात नहीं, इंटीरियर डिजाइन इज वन एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन रिमेन द सेम। तो कल आप इंटीरियर डिजाइन को छोड़कर स्टूडियो डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग और कोई डिजाइनिंग भी करना चाहेंगे तो आपको नए सर से सीखने की जरूरत नहीं, यू हैव ओनली द मीडियम नीड्स टू बी मास्टर्ड, तो आप वो तो फटाफट कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे लगता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में स्टूडेंट्स के जो पेट में बटरफ्लाइज थे वो शांत हुए होंगे मैडम को सुनकर कि हाँ, स्टिल दे आर लॉट मेनी इंडस्ट्रीज वेयर दे कैन स्टिल हैव देयर माइंडसेट कि हाँ ये अच्छा करने वाली हैं और हम इसमें जाएंगे। नाउ द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड एवरी स्पीकर इज रिक्वेस्टेड टू पाइल अप विद इन 2 मिनट्स एंड देन वी विल एंड विद दिस सेमिनार। मैम देवदत्त, पहला क्वेश्चन आपसे कि students are used to having one-to-one discussions about several issues with their teachers. How will this social distancing measures prevent this communication gap? And what are the online mechanisms कि क्या टीचर्स और स्टूडेंट की वो रिलेशनशिप जो स्कूल्स में होती है, कॉलेजेस में होती है, क्या इस ऑनलाइन मीडियम से भी वो ऐसी ही है या बन सकती है या नहीं? मैम जस्ट 2 minutes प्लीज, लास्ट योर व्यूज। मैम अनम्यूट कर लीजिए आप, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर देवदत्त। हाँ, यस, तो वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि जो हमारी क्लासरूम प्रोसेस होती है वो सिर्फ, इट इज नॉट जस्ट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बट इट इज ऑल्सो देयर फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड सोशल स्किल्स। तो वो चीज एक हमें लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से इम्पैक्ट होगी, बट वहां पर भी the teachers can build the relationship into the interaction. For example, if we are having even Zoom meetings with our students or we are having an online interaction with the students, teachers can always be concerned about the well-being of their students. वो उनसे उनकी कुशलता पूछ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन कम्युनिटीज भी बन सकती हैं, जैसे कि स्मॉल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म्ड हु कैन मीट ऑनलाइन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। जैसे स्टूडेंट्स ग्रुप्स में स्कूल में मिलते हैं वैसे वो शेड्यूल कर सकते हैं अपनी मीटिंग, 5, 7, 10 स्टूडेंट्स मिल करके आपस में डिस्कशन करें अपने एकेडमिक प्रॉब्लम्स के बारे में और भी चीजों के बारे में। तो हम टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं टू बिल्ड अप रिलेशनशिप। सो टेक्नोलॉजी आने से ऐसा नहीं है कि हमारे संबंध टूट जाएंगे, बल्कि हमें और कनेक्टिविटी मिल जाती है। जैसे कि आजकल आप देखिए बहुत सारी फैमिलीज में क्या हो रहा है, किसी एक की बर्थडे है तो आपस में मिल नहीं सकते, तो दूर दूर से जो रिलेटिव्स हैं दे ऑल कनेक्ट अप ऑन जूम, एंड जो चाहे विदेश में भी बैठे हैं वो भी मिल करके सब की वो केक भी काट रहे हैं सामने और एक दूसरे को विश कर रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज द इंटेंशन। अगर हमारा इंटेंशन है टू रिमेन कनेक्टेड तो हम कर सकते हैं और शेड्यूल बना सकते हैं। अभी इस पीरियड के अंदर भी सोशली कनेक्टेड हो सकते हैं, बस मीडियम्स चेंज हो रहे हैं। जी सॉरी, क्या क्वेश्चन आप? नहीं, हम ये आपके उसमें इनपुट कर रहे हैं कि इफ वी आर कनेक्टेड, हमारे इंटेंशंस कनेक्ट हैं, तो सिर्फ एक मीडियम चेंज हो जाएगा, डिजिटली भी हम लोग कनेक्टेड हो सकते हैं एंड मेंटेनिंग दैट। तो उसको भी हम एक रूटीन में ला सकते हैं कि टीचर जो है वो एटलीस्ट वंस अ वीक एक फोन कॉल भी कर सकते हैं बच्चों को, अगर जहां उनके अपने जो क्लास में मान लीजिए 30-40 बच्चे हैं तो 5 मिनट का फोन कॉल वंस अ वीक, वंस इन 10 डेज बच्चे से फोन पे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये तरह से हम कनेक्शन अपना मेंटेन कर सकते हैं और वो बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नाउ द लास्ट क्वेश्चन टू मैम कौशिक फॉर हर वन। इंडिविजुअल के पास एक बार लास्ट क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं बस, एंड देन वील फिनिश इट। मैम कौशिक, a question to you is how to embed social and emotional learning for children's growth। वैसे पूनम देवदत्त मैम ने भी उस पे कुछ अपने व्यूज दिए थे एंड परवीन मैम ने भी दिए थे कि बच्चा रोज नेगेटिव न्यूज सुन के घर के अंदर इमोशनली वीक भी हो रहा है और उसका स्ट्रेस लेवल भी काफी बढ़ रहा है, पैनिक करता है, जल्दी जल्दी इरिटेट होता है। इसी तरीके से जो बच्चे इस वक्त 10th, 11th, 12th हैं, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता है, उनको पहले ट्यूशन जाने का, स्कूल जाने का और बाहर स्पोर्ट्स खेलने में वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती थी, इस वक्त वो नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो इरिटेशन पढ़ाई में निकलता होगा कि कितना पढ़ें।
तो इसको बैलेंस करने के लिए व्हाट आर द क्विक टिप्स यू वांट टू शेयर विद आवर स्टूडेंट्स? सी जहां तक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के सिनेरियो के हिसाब से। डेफिनेटली जो 11th 12th 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं वो बहुत एनर्जेटिक हैं, बिकॉज उनको हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड उनका लाइफस्टाइल होता है, दोस्तों से मिलना, टीचर्स से बात करना, स्कूल के प्ले ग्राउंड्स में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करना और गेट टुगेदर्स भी करना। और ऐसे में उन बच्चों को खाली अपने होम कन्फाइनमेंट में रहना पड़ रहा है और टेक्नोलॉजी ही एक सहारा है जिसके थ्रू वो लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते। लेकिन हर समय जब स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग बढ़ रही है और बच्चा ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ कुछ अपने सोशल कनेक्ट्स के साथ भी कांटेक्ट कर रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा रोक टोक और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिससे बच्चों में एक रेस्टलेसनेस तो बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इन चीजों को हैंडल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर हमें उनके अंदर जो रेस्टलेसनेस है इसको भी समझना जरूरी है और इसको कैसे मैनिफेस्ट होना चाहिए, कैसे इसको लेट आउट करना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो मैं कई बार बच्चों के साथ जब बात करती हूँ तो सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पॉट जॉग कर सकते हैं बच्चे, थोड़ा सा फिजिकली घर में एक्टिव हो सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। और उनके इमोशंस को निगेट करना एक सोल्यूशन नहीं है कि ठीक है तुम तो हर समय फोन में लगे रहते हो, या ठीक है ये बड़ों के स्ट्रेसेस हैं तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं, हमें ये जरूरी है कि हम उनके इमोशंस को भी समझें, उनके अंदर चलने वाले रेस्टलेसनेस को भी समझें और उसको वैलिडेट करें कि हाँ ठीक है ये स्ट्रेसफुल टाइम है, लेकिन हम सब मिलके इन चीजों को हैंडल करेंगे। उनको इस चीज के लिए थोड़ा सा ट्रेन करने का ये बहुत अच्छा टाइम है जब हम सब घर पे हैं, अपने बच्चों को इन चीजों के लिए ट्रेन कर सकते हैं। बिकॉज ये जो पहले की सिचुएशन थी वो तो नहीं रहने वाली है, कुछ नए नॉर्मल नॉर्म्स डेवलप होंगे, जैसे मास्किंग है, सैनिटाइजेशन है, तो इन चीजों को भी प्रैक्टिस कराना या उनके हैबिट में डालना इस ड्यूरेशन में बहुत जरूरी है। बिकॉज कुछ टाइम बाद बच्चे बाहर भी निकलेंगे, तो अगर ये अभी से प्रैक्टिस होगी तो वो उसको अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम उनके इमोशंस को समझें, उसको एक्सप्रेस करने का मौका दें, उनके साथ बैठ के बात करें और न्यूज चैनल्स को थोड़ा सा कम करें। जैसा परवीन मैम ने भी कहा कि हर समय न्यूज चैनल्स का बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है, ठीक है एक दो बार अपडेट रहने के लिए ठीक है, बट दिन भर अगर घर में न्यूज चल रही है तो वो बड़ों के मेंटल स्ट्रेस भी क्रिएट कर रही है और साथ साथ वो बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। बच्चे अपने नियर एंड डियर वंस के लिए चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरे घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनको कोई बीमारी हो जाए, बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंटली सेड ऑन द टीवी कि बुजुर्गों के लिए ये रिस्की है। डेफिनेटली रिस्की है और सेंसिटिव है, बट बच्चों को हर समय ये चीजें कान में पड़ेंगी तो वो अपने साथ साथ अपने लव्ड वंस के लिए भी चिंतित होते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा पेरेंट्स को भी देखने की जरूरत है और इसको बैलेंस करने की जरूरत है कि हमें स्क्रीन टाइम कम हो, पर्टिकुलरली टीवी स्क्रीन टाइम, और बच्चों को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटीज के लिए हम प्रेरित करें और उनके साथ बैठ के थोड़ी डिस्कशन करें, जानने की कोशिश करें उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में इस समय अपने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस को लेके भी बहुत सारे कयास चल रहे हैं कि कॉलेज कब खुलेंगे, एडमिशंस कब होंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ही खाली बड़े लोग स्ट्रेस में हैं, बच्चे भी स्ट्रेस में हैं और ये टीनेज भी स्ट्रेस में है, बिकॉज टीनेज की दुनिया तो उनके दोस्त ही होते हैं और उन्हीं दोस्तों से फिजिकली वो इन दिनों नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है विद फैमिली डिस्कशन, एक प्रॉपर हेल्दी कम्युनिकेशन, कुछ टाइम फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, कुछ लाइट म्यूजिक के लिए, कुछ अपने डांसिंग एक्टिविटीज के लिए, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, जो भी जिस बच्चे का तरीका है अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस करने का, तो बच्चा उस चीज को एक्सप्रेस कर सकता है उन मीडियम्स के थ्रू। एंड पेरेंट्स शुड ऑल्सो हेल्प देम आउट एज वेल एज टीचर्स शुड ऑल्सो, बिकॉज हम ऑनलाइन तो बच्चों के साथ टच में हैं, तो हम बच्चों को टाइम टू टाइम फीडबैक दे सकते हैं कि वो अपने स्ट्रेसेस को किस तरीके से हैंडल करें। Thank you, ma'am. Thank you very much. It was a wonderful answer. Our last question to Major Nupur Gupta, ma'am. The students is obviously जब वो घर के अंदर है, do you think that the students should do some physical activities on a school that can help in their learning? What are your suggestions? What are your suggestions? Being in the house. Very relevant question. And all the experts have talked about, Devdutt ma'am has talked about the communication, Kaushik ma'am has talked about the emotional health, and Dr. Parveen has talked about the various career options. Now, when we look at the army, and in my previous question, I had answered that they are looking at the holistic development of a child. Till now, or till last few years, people were only talking about the IQ of the child. However, the scenario has changed.
and it has changed to number of things. So you need to have IQ, you need to have emotional quotient, you also need to have a social quotient, and the physical health. If you are physically fit, rest of the other things will be taken care of, because the moment you start looking internally, it is like an introspection. If you start looking at yourself and you start looking at your physical health, you will start focusing on the things which will make you not only physically fit, but there are enzymes which are released which creates a healthy hormone into your body and keeps you fit. Now let's come to why it is important and what were the things which we can do while we are preparing for NDA and staying at the home. There are some of the activities which you can do: sit-ups, push-ups, pull-ups. These things can be done at home. So a child needs to practice these things to create a physical fitness regime which he can do inside the house only. As far as the other aspects which are required for the NDA physical testing, these are a balance between a height and the weight. So whatever your height is, there is a scale which is given on internet. Anybody can go on internet and find out that scale. You need to identify as per your height how much should be your weight. So ma'am was talking about the nutrition and a healthy diet plan. One needs to find out that are you overweight according to it, or are you underweight according to it. Please try and change your diet in this gap time so that you get your weight under the control. It will also save you from lot of diseases which are caused because of overweight, underweight. Next issue would be that there are few things like running, jogging, walking, which are things which will create a stamina building into you, which are important from the NDA point of view also. I understand people cannot go out, they cannot do all these physical activities by going out. But whatever your length and breadth of the house is, though there are some immediate measures that you have a jogger at home, so you can practice running at home itself. Even if you don't have, try doing skipping. Get the bricks from in and around your house, put the cycle on a brick so that your tires don't run on the floor. Your cycle is on a pedestal and you can keep on cycling without running the cycling around. That will create a stamina in your legs so that you can cycle for a longer run, and also possibly you can run at the longer run. Another ready to something which I am practicing, because both of us are, me and my husband both are from the army, which we practice is like you cannot run around in case the space is a restriction. So you can run at the same place. You can possibly, if you are scared that you can't run at a same place, hold a bar or hold a shelf of your kitchen or your study table or something. Pour a small drop of oil and make it slightly smoother. It should not be so high that you fall down from there, but yes, make it slightly smoother. And if you try running on that, you will realize that if you have a stable support on both these sides, you can use that as a jogger at home also. Oblique running at the same spot will also help you. But try and keep that movement on for at least 20 minutes, because the scale is for 25 minutes, you have to complete a 5-kilometer run. And if you're looking at an NDA exam, the next step would be physical fitness. So you have these 2-3 months, because next exam is likely to come up in July, this coming July post lockdown. And another 1 month or so, you would need to go for SSB and physical fitness training. So these 2-3 months can be used to create that fitness level, so that all of a sudden you're not caught in a state, because your weight will not go down in one day. Your stamina will not be built on one day. Yes, it has to be in routine. It has to be in routine, and you have to be determined and focused to get that stamina level. And you have to practice it every day. So I would recommend everybody to develop that personality and stamina to face the NDA physical test. Thank you very much. Thank you very much, And ma'am. now the students, it is the last question of this webinar today, which is to Ma'am Parveen Malhotra. And the question is, it is difficult to do competitive preparation for the segment, which is technically not sound. What should be a strategy? अब जितने भी मैम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आकाश से लेकर इन्होंने ऑनलाइन प्रिपरेशन और उससे कंपटीशन का एग्जाम दिया है, लेकिन जिन बच्चों को अभी जेई एडवांस के अंदर अपीयर होना था, नीट के अंदर अपीयर होना था, या निफ्ट के अंदर अपीयर होना था,
वो लोग खुद नहीं जानते हैं कि वो डिजिटल एनवायरनमेंट कैसा होगा जिसमें अब वो एग्जाम देंगे, या वो जो प्रिपरेशनल स्लॉट चल रहा है। तो इस वक्त बेस्ट मैकेनिज्म प्रिपरेशन का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, वो क्या होनी चाहिए, और इस वक्त उनको किस तरीके से वो एक्सपेक्ट करें कि आने वाले समय में कितने दिन बाद उनके वो एंट्रेंस एग्जाम एज पर द शेड्यूल हो सकते हैं। देखिए, ये इस एरिया में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जनरल एडवाइस ये दे सकती हूँ कि जब हम कभी भी ऐसे अनयूजुअल सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, तो हम सिर्फ अपनी सोचते हैं। हम सोचते हैं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप जैसे सोच रहे हैं वैसे सारी दुनिया सोच रही है। सो यू आर नॉट द ओनली वन, and because we are connected online and all the coaching institutes have gone online, they are offering support online. तो आप उनसे करें, आप नेटवर्क्स बनाएं, आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, आप अपने फ्रेंड्स के, और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में अपनी तैयारी करें, के प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आपको ये अकेलापन और स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। सो दैट इज माय एडवाइस टू यू। तो ये तो आपको, और अगर आप कोरा वगैरह पे जाते हैं ना, तो आपको 1000 सजेशंस मिलेंगे, 1000। You are not the only one, everyone is going through it, and your coaching institutes would be able to guide you on this. मैं तो before going off, मैं 2 areas जो boom करेंगे उनके बारे में बोलना भूल गई, और वो बहुत क्विकली बना देती हूँ। एक तो है स्पिरिचुअल, हाँ, क्योंकि आज आप देखें ना, लोग सारे वो मैसेजेस भगवान के और कृष्णा के और इसके और उसके सबको चाहिए। एवरीवन हैज सडनली टर्न स्पिरिचुअल। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री वगैरह सीखना चाहते हैं ना, बिकॉज एवरीवन इज, यू नो, जब हम अनसर्टन टाइम्स में रहते हैं ना, जहाँ सिचुएशन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तब हम ये देखते हैं कि भाई मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है, पामिस्ट्री क्या कहती है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, वेस्टर्न सिस्टम क्या कहती है, इंडियन सिस्टम क्या कहती है। तो जो लोग ये सब मास्टर कर लेंगे ना, उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत रोजगारी रहेगी। सो एक तो ये है। दूसरा, फिटनेस एक्सपर्ट्स, जैसे आजकल मेरे योगा टीचर हैं, हाँ, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो एवरी डे आई डू माई योगा इन द मॉर्निंग एट 6:30 via Zoom, via Zoom और Google Meets with him। क्योंकि योगा तो मैं सालों से कर रही हूँ, लेकिन अकेले में करने में बहुत आलस आती है ना। सो वी रिक्वायर पीपल हु विल टीच अस एंड स्पेसिफिक थिंग्स। एक बिगिनर को आप योगा सिखाएंगे, मुझे योगा सिखाएंगे, आसमान जमीन का फर्क होगा। अगर मेरे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको लेके मुझे कौन से आसन करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। और जैसे ये कोविड सिचुएशन है, उसमें प्राणायाम पे बहुत फोकस करना है। कौन से प्राणायाम, सारे प्राणायाम आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली दोज विच विल बिल्ड अप माई लंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। सो फिटनेस एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत होगी आने वाले दिनों में। Right, so these are the 2 areas that you should be looking. Thank you very much, ma'am. And indeed, I would like to thank every attendee who had attended this, and especially our speakers who have taken out a time from their busy schedule to guide our students, which is the need of an hour. And last but not the least is, stay home, stay safe, everyone. फिर मुस्कुराएगा India, and the things will become normal, and we will be doing the seminars like this, in which we try to connect every stakeholder which is related to education one. Thank you very much, and I'm sorry for the inconvenience which was there in the starting of the webinar today due to some technical hazards, but after that it went very fine. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you, everyone. Thank you.